ناظرین، میں ہوں نعیم مسعود اور پلیٹ فارم ہے ہائر ایجوکیشن ایڈوکیسی اینڈ ڈیولپمنٹ۔ آج بطور خاص ایک بات کرنی ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ تشریف لائے اور وہ بطور ممبر سنڈیکیٹ آئے۔ اس سے قائد اعظم یونیورسٹی کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یہ آج کا موضوع ہے۔ پھر پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا، یہ بتاتا چلوں کہ سنڈیکیٹ کسی بھی یونیورسٹی کے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو کہتے ہیں اور وائس چانسلر ایکچولی افسر مجاز ہوتا ہے۔ اور آج یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو یونین کی بحالی کی بات کی تو کس تناظر میں کی، کیا وہ ہارورڈ اور آکسفورڈ کی طرح کی یونین چاہتے ہیں یا پرانی وہی یونینز جن پہ ضیاء الحق نے پابندی لگائی۔ اور ایک اہم بات یہ کہ سنڈیکیٹ کے اس اجلاس میں جس میں مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور ایڈیشنل سیکرٹری فیڈرل ایجوکیشن کے جلوہ افروز تھے اور اس کے علاوہ 2 یونیورسٹی کے الیکٹڈ ممبر بھی تھے۔ اس پلیٹ فارم پر کیا واقعی ضیاء الحق کی 1984 میں لگائی گئی پابندی زیر بحث آئی، اور ڈسکس یہ بھی کرنا ہے کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے قائد اعظم یونیورسٹی کا جب دورہ کیا، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی اینڈ انجوائے دا یونیورسٹی کیمپس ایز ویل، تو وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے اور قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انجینئر نیاز احمد اختر نے ان کی گاڑی ڈرائیو کی۔ تو اس دوران کیا گفت و شنید ہوئی، کیا تاثرات تھے اس وقت سنڈیکیٹ میں بیٹھے ہوئے ایکس وائس چانسلر جناب انوار گیلانی صاحب کے جو ہری پور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، پھر کیا ریمارکس تھے اس وقت دیگر ان لوگوں کے جو وہاں موجود تھے۔ بتاتا چلوں کہ وہاں ایجوکیشن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نصیر پاشا بھی طلعت نصیر پاشا بھی وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا 2 دفعہ یواس میں وائس چانسلر رہ چکے ہیں اور ان دنوں ایجوکیشن یونیورسٹی آف لاہور کے وائس چانسلر ایک جہاں دیدہ ماہر تعلیم ہے۔ پھر وہاں ڈاکٹر عظمیٰ قریشی بھی موجود تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ قریشی ریکمنڈیشن پہ آئی تھی سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ کی۔ ڈاکٹر عظمیٰ قریشی جو ہیں وہ ملتان یونیورسٹی کی وائس چانسلر، حال ہی میں ان کا ٹینیور مکمل ہوا، اور اس سے پہلے وہ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی۔ ان سب لوگوں کے خیالات کیا تھے، کیا سوچا، کیا پایا، یہ بھی بات کرنی ہے کہ کیا پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یا ویسے بس اشک پوشی کے لیے، یا یوں سمجھے کہ ایسے دکھاوے کے لیے آئے تھے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اس بات پہ بھی اپنا اظہار کیا، اس بات کے حوالے سے بھی، کہ چیف جسٹس کو قائد اعظم یونیورسٹی میں آنے کی کیا ضرورت پیش آئی، یہ بھی بات آگے چل کر کریں گے اور مختلف ماہرین کے اس حوالے سے خیالات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بات یہ بھی کرنی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب تشریف لائے بطور چیف جسٹس تو یہ ان کا عوامی پہلا دورہ تھا، اور اس دورے میں انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی ہی کا کیوں انتخاب کیا، یہ بات قابل غور ہے۔ پھر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ دڑا دڑ جو کمیٹیاں بناتے ہیں تو اتنا بڑا فورم ہے، اور بظاہر بڑا فورم ہے بھائی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی رونق افروز ہیں، تو ہم یہاں ہی باتوں کو ڈیسائیڈ کیوں نہیں کرتے۔ سب سے اہم بات یونیورسٹیوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری، اور قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے بالخصوص انتہائی قابل غور اور قابل رشک ایک خوشخبری کہ قاضی
फायद ईसा फरमाते हैं, अगर आप सैटरडे को या आफ्टर लंच सिंडिकेट का इजलास रखा करेंगे तो आई वुड बी अपीयर। तो ये अब मैं इसमें क्या निकालना चाहता हूँ, चलिए नाजरीन इसको, इन चीज़ों को एक एक करके मुख्तसरन डिस्कस करते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ 2002 से पहले की हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी और बिलखसूस जामिया ज़करिया और पंजाब यूनिवर्सिटी में हाई कोर्ट के जजेस मौजूद हैं। आते हैं नहीं आते हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आते हैं नहीं आते हैं, इम्पैक्टफुल होते हैं नहीं होते हैं, इसका भी जायज़ा लें तो कम ही आते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे कायद आज़म यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में जो बनाई रिसर्च के लिए गई थी, जो बनाई इस बुनियाद पे गई थी कि वहाँ एमफिल और पीएचडी होगा, वहाँ हमने बीएस भी शुरू कर लिए। और लगता ये है कि जो जिस तरह हमारी सोच हो गई है, जिस तरह एचईसी को सरकार पैसे नहीं देती, जिस तरह बेयारों मददगार हायर एजुकेशन को छोड़ दिया गया, मुझे तो खौफ आता है किसी दिन ये भी ना कहें कि हम पीएचडी और एमफिल तो दरकरार, लेट्स स्टार्ट द इंटरमीडिएट क्लासेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कायद आज़म यूनिवर्सिटी, तो डर लगता है। तो लेकिन अब फ़ायदा क्या होगा? एक तो शुरू में मैंने कहा क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, सुन लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वो लोग जो क्रिटिक्स को पसंद करते हैं, मैं भी एक क्रिटिक्स का आदमी हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि काजी फायद ईसा अगर तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने जो सवालात उठाए हैं वही सवालात तो उठने चाहिए। आइंदा सिंडिकेट में पाकिस्तान भर के सिंडिकेट्स को, जिनको मैंने अपने एक जन कालम में और जब कभी नुआए वक्त में था उस वक्त भी कालमों में कहा था कि यूनिवर्सिटियों में अक्सर क्राइम सिंडिकेट है, सिंडिकेट तो बराए नाम है, लोग एजेंडा पढ़ के नहीं आते। 2002 के बाद की यूनिवर्सिटियों में जो एमपीए इन्वॉल्वमेंट है, और फिर जो मैंने ये भी ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया हमेशा कि सिंडिकेट में आप सेक्रेटरी की बजाय कम अज़ कम तो एडिशनल सेक्रेटरी आना चाहिए ना। चलें आप मारी गए हैं, आप बड़े मसरूफ़ हैं तो डिप्टी सेक्रेटरी भेज दें, वहाँ आप वो छनकने से भेज देते हैं सेक्शन ऑफिसर, और वो सेक्शन ऑफिसर देखिए काबिल इज़्ज़त है, अच्छे ऑफिसर है, लेकिन वो सेक्शन ऑफिसर छनकना ही होगा ना, जो ऐसे छन 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 करेगा सिंडिकेट में बैठ के, लेकिन एजेंडा पढ़ के तो आया नहीं होगा। लेकिन आप देखें इस सिंडिकेट में, जहां पर मैंने शुरू में भी कहा कि वसीम अजमल मौजूद थे, इसलिए मौजूद थे ना कि जस्टिस साहब खुद आए थे। तो बड़ी यूनिवर्सिटी जो मदर यूनिवर्सिटी हैं, उनको तो हम पैराडाइम शिफ्ट की तरफ ले जा सकते हैं अगर अदलिया ऐसे ही इंटरेस्ट लेती है, अगर आदल ऐसे ही तशरीफ़ लाते हैं। और आदलों के पास पंजाब की यूनिवर्सिटियों के तो इतने केसेस हैं, मुझे अच्छी तरह याद है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के माजी में इतने केस थे कि माजी के एक वाइस चांसलर ने वहाँ कोई 12-13 अपने लीगल एडवाइज़र रखे हुए थे, तो वो वहाँ चक्कर लगाते रहते थे। इससे पहले कि कोई केस आए वो पहले ही झपटते थे, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, ये जब सिर्फ वहाँ पर लीगल एडवाइज़र का रह जाए तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला काला है, यूनिवर्सिटीज़ के अमूर ठीक नहीं। आजकल GCUF के बड़े केसेस हैं, तो इन केसों से यूनिवर्सिटियाँ पाक हो जाएंगी। असल प्लेटफार्म काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त प्लेटफार्म देखा जाए तो वो तो जनाब सिंडिकेट ही हुआ करते हैं। लेकिन सिंडिकेट में भी अगर एजेंडा पढ़ के आए, हाँ बदकिस्मती है सिंडिकेट्स की, एक इतलान अर्ज़ करता चलो 2009, 2011 और उसके बाद 17 या बाद में कोई एक्ट आए हैं यूनिवर्सिटियों में, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ सूबाई वज़ीर बतौर, पंजाब की बात कर रहा हूँ, बतौर प्रो चांसलर हेड कर रहा होता है। अभी इन दिनों निगरान हुकूमत है, तो कई यूनिवर्सिटियों में काम रुका हुआ है, सिंडिकेट है, बजट है, अपॉइंटमेंट्स हैं, इन सब कोई कंफर्मेशन और बहुत सारे केस, पीडा के केस, ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस होनी होती है। तो हमारे निगरान जो इन दिनों एजुकेशन के वज़ीर है पंजाब में, उनके पास तो
टाइम ही नहीं। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट जिंदा है, अगर वो बर्फ नहीं है, अगर वो जिंदा लाश नहीं है, वाकईतन एक्टिव है, तो किसी यूनिवर्सिटी में ना करप्शन हो सकती है, ना किसी यूनिवर्सिटी को बिला वजह और बिला ज़रूरत सियासतदान बदनाम ही करेंगे, जिस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को किया गया। यानी सिंडिकेट जाग रहा हो, सोया हुआ महल ना हो, तो यूनिवर्सिटियां आपके मुल्क में पैराडाइम शिफ्ट ला सकती हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि पैराडाइम शिफ्ट अगर पाकिस्तान में अब के बार आएगा तो 70, 72, 74, 75 सालों के बाद यूनिवर्सिटियां ही ला सकती हैं। आज नईम मसूद या वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, पहले टेक्सला यूनिवर्सिटी, फिर उससे भी पहले टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यानी यूईटी टेक्सला की बात कर रहा हूँ, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी और आज कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के जहाँ दीदा वाइस चांसलर हैं, तो नईम मसूद से लेके, नईम मसूद जैसे तालिब इल्म से लेके जहाँ दीदा वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर साहब ने सब कुछ यूनिवर्सिटियों से सीखा, इसका इजहार भी किया। देखिए, जो बहुत बड़ा सवाल उठाया कि क्यों ना यूनियन बहाल हो जाए। ऑक्सफर्ड में और कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटियां सारे अच्छे काम करती है, बल्कि मुझे अनवार गिलानी जो इसी सिंडिकेट के मेंबर हैं, उन्होंने बताया कि जब वो हरिपुर के वाइस चांसलर थे तो उन्होंने जब एकेडमिक काउंसिल होती थी तो वो स्टूडेंट नुमाइंदे को भी बुला लेते थे। स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा है। आजकल तो हरासमेंट के केस भी प्रोफेसरों पर ही होते हैं जी, और क्यों होते हैं? तो क्या हुआ अगर यूनियन बहाल हो जाती है? मुझे एक साबिक सेक्रेटरी ने बताया कि वो ऑक्सफर्ड के जब प्रेसिडेंट यंग आदमी को सुन रहे थे, स्टूडेंट को सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा इसका विजन तो हमारे कई वफाकी वज़रा के बराबर है। तो अब अगर बदमाशी ना हो, असला ना, हाँ, असला से याद आया कि एक सवाल उठाया जनाब चीफ जस्टिस ने, इज़्ज़त माब ने कहा कि यूनिवर्सिटियों को गन फ्री होना चाहिए। तो उन्होंने बताया जी यूनिवर्सिटी गन फ्री है, वैसे बाय द वे ना गन फ्री है ना ड्रग फ्री है, तो यूनिवर्सिटियों को ड्रग फ्री भी होना चाहिए, और सही कहते हैं जनाब चीफ जस्टिस, गन फ्री भी होना चाहिए। किताब होनी चाहिए, कलम होना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल लिंक की बात होनी चाहिए, कंसोर्शियम की बात होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों को लीड करना चाहिए एचईसी को पुलिसमैन भी नहीं बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट्स आज खुद जो वो फैसले लें, आप एक्ट देख लेना 36, 37, 38 जो 2002 की यूनिवर्सिटीज़ का है, तो एक नन्ना मुन्ना सा एचईसी तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर भी पल रहा होता है। इसी तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसा ही है। बहरहाल एक नया रुझान, एक नया रवाज, एक नई तारीख मुरतब हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की जो एंट्री पड़ी है बतौर मेंबर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, तो इसमें बनाव की बात है, बिगाड़ की कोई बात नहीं है। इसमें बाई प्रोडक्ट भी हैं और प्रोडक्ट भी आएंगे, और बाज़ का तो आपको पता है कि हम प्रोडक्ट लेते लेते बाई प्रोडक्ट अच्छे लेते हैं। ये जो जजेस बैठे होंगे ना, तो यूनिवर्सिटियों में जो कोई प्रोफेसर तैयारी करके नहीं आया होगा, कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं करके आया होगा, कोई एमिनेंट मेंबर नहीं करके आया होगा, कोई वाइस चांसलर के खिलाफ भी केसेस होंगे और जो वो खुद चेयर कर रहा होगा, तो कुछ तो शर्मा शर्मी होगी, कुछ तो हया की पासदारी होगी। वरना हमारे यहाँ तो ये भी है कि सिंडिकेट्स को चेयर वाइस चांसलर कर रहा होता है और कुछ चीज़ें उसके खिलाफ भी होती हैं। हाँ जी, होते हैं ना जी कुछ खोखले वाइस चांसलर भी। तो इन सब चीज़ों को जब देखा जाएगा तो फिर वाइस चांसलर के खिलाफ भी जो बात है वो भी चौकन्ना होगा, वो भी ये सोचेगा कि कोई तो है जो मुझे भी पूछ सकता है। तो फिर एक बाहमी एहतसाब, खुद एहतसाबी का कल्चर भी फ़रोग पाएगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, खुशकिस्मती है डॉक्टर नियाज अख्तर की, डॉक्टर नियाज की, कि वहाँ तशरीफ़ लाए जी, तशरीफ़ लाए चीफ जस्टिस, और अब ट्रेंड बनेगा, लोग तैयारी करके आएंगे और उम्मीद है क्राइम सिंडिकेट नहीं रहेंगे।